Hello everyone, welcome to my YouTube channel Crack That Turning Problems into Solutions. This is me Priyasha Das and today in this video we're going to discuss a very important thing, which is how to keep ourselves active and most productive during our allotted CAT exam slot. Now it can be any exam slot, ZAT का तो एक ही slot होता है, so there's no point of ZAT here. But yeah, in CAT you're having three slots right now if you people know. So the first slot is the morning slot which will start at 8:30 in the morning, go up to 10:30. So that means आपका reporting time somewhere around 7 a.m. होगा, which is a very dreadful time for the night owls. जो भी लोग लेट से उठते हैं उनके लिए तो ये काफी डिफिकल्ट है. So what we are going to discuss in this video is कि हम इस तरह के challenges and distractions during the examination को कैसे fight करेंगे. The next slot, that is the afternoon slot we have, is 12:30 onwards, goes up to 2:30, and the reporting time somewhere will be I think 11 a.m. only. And then let us check the last slot, which is from I think 4:30 if I am not wrong. And from 4:30, this will last up to 6:30 in the evening, and reporting time will be somewhere around 3 p.m. So सुनने में तो लगता है कि ठीक है मैम, ये चीज हमें पता है. मैंने ये अपने लाइक थंबनेल में भी लिख दिया है कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपने प्रेफर्ड एग्जाम स्लॉट में मॉक्स दीजिए या वहां पे बैठ के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. ये आप लोग को शायद 10 years पहले से भी पता होगा. और मे बी आई डोंट नो, वेन एवर यू हैव इवन गिवन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन जहाँ पर इस तरह के स्लॉट्स होते हैं, so it's quite obvious and understood कि आप अपने given slot में अगर exam देते हो तो your body get accustomed. But the point is different here. The point which I'm going to share here is not related to the things you already know. I would like to discuss something which can be new for few of you. So what I'm going to tell you is, first of all, morning slot के time वाले बंदे बहुत परेशान हैं with respect to the thing कि हम अपने drowsiness, sleepiness को कैसे दूर करें during that time. Remember, if you have to reach the center by 7 a.m., you have to be ready at 6 a.m. I don't know how far the center would be for your from your place. So that's why it's safer to get up at 6 a.m. or maybe earlier if it's too far away for you. And 6 a.m. minimum उठकर आपको ready होना है. अब of course नहाना या नहीं नहाना वो तो आप पर है. But I would seriously recommend you people to have your breakfast and then attend the exam. Now this is not that mummy wala logic that it will be shubh for you if you eat and don't keep your stomach empty. But mamas run around us because there is a scientific reason also. Scientific reason ये है कि खाली पेट आपके बॉडी में enzymes तो पेट में आते ही रहते हैं, राइट? अब उससे क्या होता है, इस कंडीशन में हम फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, बट एग्जामिनेशन वाले माहौल में हमारे ऊपर एंजाइटी भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है. तो उस एंजाइटी के साथ जब वो सीक्रीट करते हैं एंजाइम्स, हो सकता है कि हमारे बॉडी में गलत रिएक्शंस हो जाए. मैं बिल्कुल इजी वर्ड में यूज कर रही हूँ, मैं बायो स्टूडेंट थी इसलिए मैं ज्यादा एंजाइम का नाम नहीं लूंगी. सो हमारे उस एंजाइम से क्या हो सकता है, गलत रिएक्शन हो सकता है एंड हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं. सो प्लीज नोट इट डाउन एंड रिमेंबर इट कि हमारे बॉडी में खाली पेट रहने पर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं. ये कॉन्ट्रैक्शंस आपके सीने में दर्द करवा सकता है, पेट में दर्द करवा सकता है एंड इन मेजर केसेस सर में भी दर्द करवा सकता है. इस सिनेरियो में एग्जाम अच्छे से दे पाना पॉसिबल नहीं है एंड दिस इज प्रूवन. ओके, सो इसीलिए डू नॉट अवॉइड योर ब्रेकफास्ट. कुछ भी हल्का फुल्का जैसे भी आपकी एपेटाइट है. कुछ लोग कम खाकर रह लेते हैं, कुछ लोग मेरी तरह बिल्कुल नहीं रह सकते. सो इसीलिए आपकी जितनी एपेटाइट है आप उस हिसाब से अपना खाना खाइए एंड सेंटर जाइए. रिमेंबर दिस. ओके, एंड अगर बाय एनी चांस कुछ हो गया, लेट हो गया, आपके उठने में लेट हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियोज. सो उन केसेस में आपके पास कोई प्रोटीन बार्स वगैरह होने चाहिए जिन्हें आप इंस्टेंटली खा सको एक दो एंड फिर तुरंत जा सको अपने सेंटर. ओके, ये चीजों को अपने साथ रेडी रखिएगा. यू नो, बीइंग प्रिपेयर्ड इज ऑलवेज बेटर देन मूविंग स्पॉन्टेनियसली. सो ओवर हियर, मॉर्निंग वाले एक चीज हमेशा याद रखें कि आपको मिनिमम 6 a.m. उठने की प्रैक्टिस तो कल से ही डालनी होगी. अब ये प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो कि कल आप 7 o'clock उठ सकते हो, नेक्स्ट दिन आप 6:45 उठ सकते हो. इस तरह धीरे धीरे अपने टाइम को पीछे लेके चलिए और 6 a.m. तक उठने की हैबिट डालिए. अब ये याद रखिएगा कि 6 a.m. उठकर आपको कुछ रिविजन वगैरह नहीं करना है. सो प्लीज डोंट कीप एनीथिंग
pending for the next day. Wind up everything possible on 26th of November only. 27th of November आपको एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही देना है जैसे आप कोई नॉर्मल मॉक देते हो. रिमेंबर दिस. ओके. सो उस दिन के लिए कुछ भी मत रखिएगा. एंड ये जो भी ड्राउजी टार्डी फीलिंग है, अगर बहुत ज्यादा ऐसी ड्राउजीनेस आपको फील हो रही है या आप कभी नहीं उठते थे और आज आपको उठना पड़ रहा है, तो इस चीज के लिए कल से एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए. यू गेट अप एट द पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से 7 o'clock, and start moving around in your own room. You can listen to videos or audios of anything you have, or you can just move around listening to news or anything you wish, जो भी आपको पसंद हो. Keep your mind active by some physical activities during this period. मुझे पता है आप एग्जाम में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, but this is just a preliminary stage. First 1 week at least आप अपने माइंड को ओपन रखने की कोशिश कीजिए. And once you are done with that, then you would be moving ahead and sitting for 1 hour, then 2 hours in the same frame. बैठकर आपको कुछ भी करना है. It can be anything. It can be reading a newspaper, solving some easy questions, or something like that. Okay? Now, here is a point, a very, very important point which I want to make. लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि they still feel sleepy even if they have practiced it for more than 1-2 weeks. So आपको पता है रीजन क्या होता है? जब भी आपसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, उस वक्त दिमाग हार मान जाता है एंड उसको आती है नींद. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्रिक आवर माइंड्स. हाउ विल आई ट्रिक माय माइंड? I will solve the easiest questions possible, which I've already solved maybe earlier, or else I can do the things which I like or which I find are strong enough. So if I do these things, okay, like the sections in which I am strong enough or the sections which I've already solved, I know the answer. मुझे बस अपने दिमाग को ट्रिक करना है कि मैं सॉल्व कर रही हूँ और कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ. सो ट्रिक योर माइंड लाइक दैट एंड सिट फॉर 2 hours. ओके, आपको आपकी बॉडी को 2 hour ऐसे खाली ही बैठे रहने का ही सही, लेकिन ट्रिक करना पड़ेगा सो दैट योर बॉडी इज नाउ अकस्टम विद. अच्छा, 8:30 से 10:30 बैठना है, एक जगह पे बैठना है, इट्स फाइन. एंड रिमेंबर, आपको 8:30 से नहीं बैठना है. हो सकता है कि आपको वो लोग 8 o'clock से बैठा दे या फिर उससे भी पहले बैठा दे, अगर सेंटर्स जल्दी खुल जाते हैं तो, लाइक अंदर जल्दी वो लोग ले लेते हैं तो हो सकता है आपको 45 minutes से लेकर 1 hour तक बैठना भी पड़े एक्स्ट्रा एग्जाम में. तो वो सब आपकी चॉइस है. हाउ विल यू डील विद इट इज योर टर्न. अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ कंप्यूटर के सामने चुपचाप नहीं बैठ सकते, मुझे नींद आ जाएगा, सो अवॉइड एंटरिंग द सेंटर बिफोर द गिवन टाइम. ठीक है, बाहर ही खड़े रहना, घूमते रहना, अवॉइड दैट. ऑलराइट. And the next thing which I want to tell you is the next slot ones, that is 12:30 to 2:30 वाले folks. ये तो काफी एक्टिव टाइम है, प्रोवाइडेड जिन्हें ऑफ कोर्स आफ्टरनून नैप कहीं 12-1-2 बजे लेने की आदत है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. अदरवाइज एक और बहुत जनरल प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि इफ यू टेक अ हैवी लंच, स्पेशली राइस लेडन, तब प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको स्लीपी लगे. बट यहाँ पर भी मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर देना चाहती हूँ. डोंट यू एवर थिंक दैट यू विल स्किप योर lunch or your breakfast whatsoever. See, there are two options, of course. You can have a very heavy breakfast at around, let's say, 10:30 or 10, and you can avoid having your lunch because 2:30 में तो एग्जाम वैसे भी खत्म हो जाना, 3 o'clock तक आप फ्री हो जाओगे अगर वो आपका नेचुरल नॉर्मल लंच टाइम है. In case it's not your natural lunch time and your natural lunch time ranges from somewhere 1 o'clock or something, then in those circumstances, please, आप या तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके डायरेक्टली अच्छा लंच करिए, या फिर अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है तो टेक 50% ऑफ व्हाट यू जनरली टेक इन लंच. ओके, कीप अ स्नीकर्स और एनी प्रोटीन बार रेडी विथ यू कि आप घुसने से पहले एक बार खा लो. सेम रीजन है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पेट खाली रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से दिमाग काम करना बंद कर सकता है और बॉडी में पेन हो सकता है. सो टू अवॉइड दैट यू शुड नो दैट आपके पेट में एम्पल फूड हो. ओके. एंड हाँ, एक मेजर डिस्ट्रैक्शन की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरे साथ हुआ था इसलिए बोल रही हूँ. यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रैक्शंस हैपनिंग अराउंड यू. देयर वाज वन सेंटर in which during my time slot
there was some kind of a party, maybe a marriage ceremony, or I don't know what was going on in the next to like neighboring building, and they were playing songs. The problem was that they were playing all my favorite songs, like kind of favorite songs, जो मुझे आते हैं. So जब आपको वो चीज आते हैं, वो आप खुद ही खुद गुनगुनाने लगते हो, एंड यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, एंड आपका दिमाग वहां इन्वेस्ट हो जाता है थोड़ा. सो दीज आर सम थिंग्स विच यू कांट स्टॉप. अगर इन्विजिलेटर बात कर रहे हो तो हो सकता है आप उन्हें रोक सकते हो. कोई कॉरिडोर में चिल्ला रहे हैं तो आप इन्विजिलेटर को बोल सकते हो कि प्लीज आस्क देम नॉट टू स्पीक लाउडली. बट द प्रॉब्लम इज, इस तरह की बाहर से आने वाली कोई साउंड या डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी हो सकता है आपके सेंटर में कोई झगड़ा हो जाए. ये भी हुआ था. ये कैट के एग्जाम में नहीं हुआ था. आई रिमेम्बर दिस हैपेंड इन वन ऑफ द मे बी आइदर आईआईएफटी और दैट, आई डोंट रिमेम्बर, बट दिस हैड हैपेंड विथ मी बिफोर, जहां बाहर में लेट हो जाने की वजह से स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स वर लिटरली ट्राइंग टू ब्रेक द गेट and move it to and fro, and that was an iron gate, and just imagine कितनी आवाज हो रही होगी, कितना हल्ला हो रहा होगा. बट उस चीज को भी आपको प्रिपेयर्ड चलना है कि ऐसे हल्ले गुल्ले वाली शोर शराबे वाले इन्वायरमेंट में आप खुद को कैसे बचाओगे. ओके, सो खुद को कैसे बचाओगे का आंसर है स्टार्ट चैंटिंग. अब भगवान का नाम लेना इज नॉट जस्ट चैंटिंग. चैंटिंग कैन बी एनीथिंग. ओके, चैंटिंग कैन बी if you want to go into I am A, then I am A, I am A, I am A, I am A. Okay, anything, anything. ये बस एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ. Alright, you can chant anything. जब आप कुछ भी चैंट करते हो, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हो, आप क्वेश्चन में से कोई वर्ड चैंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आरसी सॉल्व कर रहे हो तो आरसी का एक वर्ड ले लो और उसको चैंट करते रहो. कुछ भी करो, दैट्स यू, अप टू यू. बट चैंट करने पर एट अ सर्टेन टाइम, ओके, जैसे कि करीब 50 टाइम्स 60 टाइम्स चैंट कर लेने पर देयर विल बी अ पॉइंट वेयर यू विल रियलाइज कि अच्छा चलो, अब मेरा दिमाग स्टेबल हो गया. ठीक है, तो दिस कैन हेल्प यू फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस हैपनिंग आउटसाइड. और ये किसी भी स्लॉट में हो सकता है. इट्स नॉट स्पेसिफिक टू अ टाइम स्लॉट. ओके, नाउ वील मूव टू द लास्ट स्लॉट विच इज 4:30 to 6:30. अगेन, अगर लेट आफ्टरनून में नैप लेते हो तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट खाने वाने की एरिया में तो ये नहीं पड़ता. सो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल स्लॉट टू बी ऑनेस्ट. हाँ, बट लास्ट स्लॉट वालों को एक प्रॉब्लम होती है. मुझे लास्ट स्लॉट ही मिला था. लास्ट स्लॉट वालों को एक प्रॉब्लम होती है और वो होती है द वेरियस नोटिफिकेशंस पॉपिंग अप इन योर मोबाइल फोन. यस, इनको सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है नोटिफिकेशन की. आप दिन भर बैठे हो, आपको आपके सारे एजुकेटर्स एंड मेंटर्स ने ये बोल दिया है कि आपको कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं, चिल रहने की जरूरत है. वैसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट 2 स्लॉट्स को बोल रही हूँ, बट द लास्ट स्लॉट वाले खाली बैठोगे, सिर्फ टेंशन होगी. ओके, तो बेटर ये होगा कि आप हल्के फुल्के फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो, या अपने सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं काफी इंटरेस्टिंग थे, या फिर आपने पिछले मॉक में अच्छे से सॉल्व किए थे, गलत नहीं, अच्छे से सॉल्व किए थे, आप उन्हें एक बार रिविजिट कर सकते हो. वट एवर यू लाइक, वो भी सिर्फ 1 आवर या 2 आवर्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं. ओके, एंड कीप योर सेल्फ काम एंड रिलैक्स्ड. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल नेक टू नेक चलते हैं और उसमें हम लोग हरी के स्टेट में आ जाते हैं, एंड हरी के स्टेट में हमारे दिमाग सही तरह से काम नहीं करता. सो moving back, notifications, there will be plenty of YouTube videos and YouTube channels who would be coming live and giving you insights from the center. कैट का slot 1 पेपर कैसा आया था, अरे इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, डीआईएलआर में ये आ गया था. बिल्कुल देखना नहीं है आपको. मेरे चैनल में तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, आई कैन अश्योर यू. बट किसी और चैनल में या किसी और जगह से आपको ये अपडेट लेने की जरूरत ही नहीं है कि क्वेश्चंस के नंबर चेंज हो गए, कौन सा सेक्शन ज्यादा आ गया. अब सेक्शन 1 को उन्होंने अरिथमेटिक के 4 क्वेश्चन दिए, तो क्या गारंटी है कि सेक्शन 3 को भी 4 क्वेश्चन देंगे? कोई गारंटी नहीं है. यस, तो प्लीज अवॉइड द नोटिफिकेशन. वो सिर्फ आपकी एंजाइटी लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं. देर इज नो बेनिफिट, सिंपली नो बेनिफिट. लास्ट टाइम तो फिर भी एक था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव चेंज, बट इसका इंडिकेशन भी उन्होंने पहले ही दे दिया था. सो इट वाज ऑफ नो यूज. ओके, सो प्लीज अवॉइड नोटिफिकेशंस लास्ट स्लॉट वाले. एंड लास्ट स्लॉट वालों को अगर एक टाइम में बैठकर काम करने के लिए मुश्किल हो रही है, सो टेक द सेम स्ट्रैटेजी. फर्स्ट वीक indulge yourself in sitting from 4:30
to 6:30 and scrolling through your Instagram. अगर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा ना तो बैठ जाओ एक चेयर पे और बिना हिले आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। आप मूवी देख लो 2 घंटे की आप कुछ भी कर लो, बट बिना हिले बिना वॉशरूम गए ये भी प्रैक्टिस कर लेना। प्लीज डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट इन गोइंग वॉशरूम। ये सबसे ज्यादा हजार्डियस है। ओके, इस एग्जाम में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो 2 मिनट भी लूज करना, और 2 मिनट नहीं लगेगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप एक नए सेंटर में जा रहे हो, नई जगह जा रहे हो। आपकी क्लासरूम वॉशरूम से कितनी दूर है आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप देख देख के जाओगे जिसमें आपको मिनिमम 5 मिनट्स या मोर लग जाएगा टू कम बैक टू योर पोजिशन। सो यू कांट even afford. This is only in the emergency case. Otherwise, be prepared. Exam शुरू होने से पहले use the washroom and come back. All right. So yes, that was the thing. So first, for the first 1 week, prepare using doing anything you want to do between 4:30 to 6:30 or any slot you have. And once you get habituated to sitting in a particular place without moving around for 2 hours, then you can start solving questions at that period. ठीक है? And if you are still feeling sleepy or drowsy, you know what to do. You have to trick your mind by the easiest questions you have done already or the sections in which you are strong. Like आपको लगता है कि मेरे ये particular section के questions अच्छे बनते हैं, तो मैं इसी को practice करूंगा. Trick your mind into keeping itself active for the first 3-4 days and then automatically shift to giving either mocks or sectional tests or anything during that time. All right, I think this video was useful for all of you. अगर हो तो प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And if you're new to the channel, then please subscribe to the channel as well. I'll come with more such important content. And if you have any questions, feel free to ask. ये मेरी डियर मिस टी ने पूछा था, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है should I take your name in the video or not. So dear Miss T, this answer was for you. Okay. And others, आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, फील फ्री टू ड्रॉप इट इन दी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी. आई एम अवेलेबल एवरीवेयर. एंड इफ यू वांट टू पोस्ट इट पब्लिकली इन दी कमेंट सेक्शन ऑल्सो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. I will take up the question and try to explain it as much in detail as possible. Thank you so much for watching this video, guys. Keep hustling, अच्छे से पढ़ाई करिए, and see you in the next video.